बैठना ही है सामने, तुम समझ गए क्या थिंकिंग आपने इतनी बातें बोल दी ना कि अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि थिंकिंग क्या है। नैरो माइंडेड थिंकिंग है आपकी। घुसा दोगे तो क्या होगा? ये वेट क्यों होते हैं भाई? तुम लोग की थिंकिंग की वजह से ही होते हैं। ये चीज क्लियर है, इंडिया वालों की थिंकिंग की वजह से ही होता है जो होता है। सोशल हो चाहे वर्चुअल हो, सब होता है। घुसा दोगे। Hello guys, this is Vivan Dubey and you are watching a channel Something New. Today I am very depressed and very frustrated. I don't know why, but there was a debate between me and a crazy TikToker. I know I can't reveal her name because there was a personal emotional attachment with her, and she is very respectable for me, so I can't reveal her name. The topic was that actually I posted a pic on my WhatsApp status of some TikTok girls which are promoting nudity, and she was trying to defending them. She was trying to say that this is not nudity, this is called belly dance. Okay, if you call that belly dance, and don't use this word dance, don't use this word dance, because there is a very big difference between dance and this thing, because I don't say this dance. Dance is an art, dance is an divine art. If you are comparing this shit, okay, with dance, then you are insulting Lord Nataraj, okay, the originator of dance. I am not saying it's a personal life. You have right to do anything. You have right to expression. You have right to traveling. You have right to do anything. But it's a personal life. Don't make a personal life publicly. I don't want to make this debate personally. But when she said, she also blame on me that your thinking is very middle class. You are very. She used a word. I think she said to me narrow minded. Okay, there are some words which hurt me most. Narrow minded. And the second thing she said, what is the use of your education? It's mean she raised a question mark on my education. And the third thing that she's saying that the person like you are the reason of rape. The mentality like you are the reason of rapes. Okay, these three things which hurts me most. Okay, that was the debate between two ideology. I don't so that was the debate between two persons, because I can't blame you. I can't personal attack on you because I know my limit, and I personally respect you. So I don't call any one wrong word to you because you are very connected with me. So I can't say any one wrong word to you. Now, yesterday I said I will teach you what is women empowerment. Listen this carefully, and what will you reply? I will also listen that carefully, but now listen that carefully. Women empowerment. First of all, I want to introduce you to myself. Okay, I don't. This is not my ego. This is not. I am not proud of me. But listen, I started my teaching journey from 2015, and I have almost completed my 5 years in my career. So from 2015 to 2020, I have taught almost 1000 plus students in my career. Okay, on a coaching
center, on a computer center, in my own coaching center, and also in a college, and including 515 girl. And now you will think, what is new in it? सब पढ़ाते हैं, बहुत टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं गांव में जिन्होंने नाम किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एरिया में लोगों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. ओके, नया भी सुन लो. आई थिंक यू नो अबाउट इट, बिकॉज मैं हर चीज़ के लिए गूगल नहीं करता, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट इट. आई हैव practically knowledge and I also read about that. अभी भी गाँव में you know that mostly population of this country live in villages. Okay, what is world? If you want to see the world, come in villages and see the real world. Okay, that was a false world where you're living. Okay, I don't want to make this debate to village versus city, but if you want to see the real world, come in villages. I will show you what is real world. Okay, or what are the issues and what are the problems of villages. Now listen, यहाँ आज भी कुछ लोगों की मेंटलिटी, आई डोंट थिंक सभी की मेंटलिटी देयर, बट देयर आर सम पर्सन जिनकी मेंटलिटी है, और वो ज़्यादा भी हैं, किंतु सब में भी नहीं कह सकते. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते आफ्टर 10th फॉर 12th, और 12th के बाद ग्रेजुएशन नहीं कराना चाहते. ठीक, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, और क्योंकि देखो इसका रीज़न एक भी हो सकता है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, उसके साथ साथ उनकी मेंटलिटी भी होती है कि इनको अब पढ़ के करना क्या है. ठीक, क्योंकि इन्हें शादी के बाद तो वही घर संभालना है. बट आई चेंज दिस मेंटलिटी इन माई विलेज. बिलीव नहीं होगा, लेकिन जब अपने गांव में समथिंग 515 गर्ल्स प्लस जब मैं पढ़ा चुका हूँ, उनके घर से उनके पेरेंट्स जब कहते हैं कि आई कांट पे यू योर फीस, दैट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर मी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा नहीं है मैं उन्हें ये कह दूँ नहीं अब ये नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड वर्क फॉर मी इफ़ आई टीच देम. और ऐसे बहुत से लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और उनके पेरेंट्स को भी इनकरेज करा सका हूँ कि उन्हें आगे भी पढ़ाएं. कुछ बच्चे जिन्हें 12th के बाद ग्रेजुएशन कराने के उनके पेरेंट्स मना कर रहे थे, उनको मैंने इंसिस्ट करके उनको ग्रेजुएशन कराई. देयर वाज समथिंग 10 और 12 गर्ल्स जो ग्रेजुएशन में मैंने खुद एडमिशन कराया. ओके, 2 साल हो गए ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग. अब ये समझिए कि ये जो मेंटलिटी थी गांव में, इसको चेंज करने में अगर ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट जो तुम कह रही हो, वो मैं किसी भी हालत में उसे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कहता. आज उन्हीं में से कुछ लड़कियां, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ माई टीचिंग, तो उन्हीं में से कुछ लड़कियों की शादी भी हो चुकी है. दे आर अपने घरों को संभाल रहे हैं वो लोग, और उन्हीं में से कुछ टीचर्स भी हैं जो अपने अपने गांव में पढ़ा रही हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग बाहर भी जॉब्स भी कर रहे हैं. बिकॉज कंप्यूटर सेंटर जब मैंने पढ़ाया तो बहुत से लोग थे जो कंप्यूटर सीख के वहाँ से और बाहर नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब्स भी कर रहे हैं. और जब गांव की एक पढ़ी हुई लड़की जब शहर में जाके किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग सेंटर में प्राउड से पढ़ाती है और अपने गांव का नाम रोशन करती है, दैट इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट. जब गांव की ही कोई लड़की जाके कहीं जॉब करती है और वो उस मेंटलिटी को हराती है जो इस घर की मेंटलिटी थी कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर संभालने के लिए होती है, उस मेंटलिटी को हराकर बाहर जॉब करती है, दैट इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट. अंडरस्टैंड? मैं लेक्चर में ही विश्वास नहीं रखता, आई ऑल्सो वर्क ऑन द ग्राउंड.
which you personally attack on me, I really hurted by some words, and the most hurted word was narrow-minded. Okay, I think if I am narrow-minded, then I proud to be narrow-minded. जो मैंने इनके लिए किया ठीक था शायद, अगर मैं narrow-minded था, कि मैंने उन 515 गर्ल्स को शायद ये नहीं सिखाया कि ये जो आपका सो कॉल्ड बेली डांस है, उसे करने से आप वुमेन एम्पावरमेंट कर सकती हैं, उसे करने से आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगी, उसे करने से आपकी फैमिली को बहुत ही इज्जत मिलेगी, और उसे ही करने से आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे. शायद मैंने ये नहीं सिखाया, और मैंने ये नहीं सिखाया. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और अगली बात, जो वर्ड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगा और जिसने मुझे बहुत हर्ट भी किया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर एजुकेशन इफ़ योर थिंकिंग इज़ लाइक दैट. You raised a question mark on my education. कुछ भी बोलने से पहले शायद एक सेकंड भी ये नहीं सोचा कि what you are talking about, क्या बोलने जा रही हो और इसका क्या मतलब है. I think you don't thought about that. बस जो मन में था वो बोल दिया. मैं फिर कह रहा हूँ, that was a not personal fight between me and you. और कोई डिबेट पर्सनली नहीं हो रही थी, मैंने कोई पर्सनली अटैक कभी भी नहीं किया, बिकॉज आई नो माई लिमिट. ओके, और तुम भी नहीं, बिकॉज यू आर द वेरी कनेक्टेड विद मी. अगर और भी कोई होता तो भी उस पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं करता, बिकॉज आई नो माई लिमिट वेरी वेल, और मैं उसे कभी भी क्रॉस नहीं करता. तुम तो छोटी हो मुझसे, और शायद फिर भी मैंने ऐसा नहीं कहा. कोई बड़ा भी होता तो मैं कुछ नहीं कहता किसी से, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ में मैं उसे ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे बिना जाने बिना समझे और मैं उसे नैरो माइंडेड या उसे बोल दूं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर एजुकेशन, और द पर्सन लाइक यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप. ओके, आई होप कल तुमने वो न्यूज़ पढ़ी होगी जहाँ एक टिकटॉकर, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस हिज नेम, जो कल अपने टिकटॉक वीडियो में प्रमोट कर रहा था एसिड अटैक के बारे में. आई होप तुमने देखा है. तो वी आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप. जिनकी ऐसी मेंटलिटी है वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. अगर हमें लाइक ए गार्जियंस या भाई की तरह या एक टीचर की तरह बुरा लगता है कि कोई ऐसा कर रहा है, देन इसका ये मतलब, पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते इसका ये मतलब नहीं है कि दे आर सपोर्टिंग रेप. समझ रहे हो? तुमने जो बात कही, द पर्सन लाइक यू, लाइक योर मेंटलिटी आर द कॉजेज ऑफ रेप्स. तो उसमें तो वो पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं जो अपने बच्चों को ये सब नहीं कराना चाहते. तो आर द कॉज ऑफ रेप? Give me answer and thought about that. I am a teacher, और मुझे बुरा लगा है कि किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया. इफ़ आई एम अ ब्रदर, मुझे बुरा लगा है कि शायद किसी मेरी सिस्टर ने ऐसा किया, देन वो मुझसे कह सकती है कि द पर्सन लाइक यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप. दिस इज द नॉट अवर मेंटलिटी. रेप कम फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर. नहीं मानती, देख लेना हमारे यहाँ कोई ऐसा जो ये मेंटल डिफेक्ट आया है ना, ये हमारी देन नहीं है. हमारे यहाँ जो सिखाया गया था, शायद अगर वो सब सीख लेते तो शायद ये जो वर्ड है ना रेप, वो आता ही नहीं. हमारे यहाँ सिखाया गया था, शायद सुना होगा, इफ़ यू रीड दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी पढ़ा होगा. हमारे यहाँ बताया जाता था, अभी भी बताया जाता है, शायद बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र वसन्ते देवता. जहाँ पे नारी की पूजा होती है
वहाँ पे देवता निवास करते हैं, बिकॉज हम उन्हें देवी मानते हैं अभी भी। ठेके की कभी बात ही नहीं करते। इट इज़ अवर कल्चर। वी नॉट अंडरस्टैंड वुमेन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट, ओके? इट इज़ नॉट अवर कल्चर, सो डोंट ब्लेम on this culture and don't blame my mentality, especially my mentality, because you have no right to say personally attack on anyone. It was a fight between two ideology. You can say that your ideology, your thinking is very bad, but when you personally attack on me, that was the worst thing of my life, and I will never forgive myself. I don't say you. I will never forgive myself that I did it with you. And the last thing जो तुमने कहा कि हमें दुनिया से क्या मतलब, हाँ, सबको अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है. I agree, everyone has a personal life. Okay. हमें सिखाया गया है, बिकॉज अगर तुमने कभी भी शायद रामायण या फिर गीता पढ़ी होगी, आई होप पढ़ी होगी, ठीक? तो गीता में शायद ये भी लिखा है कि जो इंसान केवल अपने लिए सोचता है उसे किसी भी एंगल से हम इंसान नहीं कह सकते. इंसान वो है जो इस पूरी सोसाइटी के लिए, जो इस पूरी दुनिया के लिए सोचता है, और उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में प्रोटेस्ट भी करता है. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे समाज में से जो बुराइयां हैं कभी नहीं गई होती. ओके, सती सिस्टम के बारे में हमारे समाज में जो बुराई थी, अगर राजा राम मोहन रॉय ने नहीं उठाई होती तो शायद सती सिस्टम आज ख़त्म नहीं हुआ होता. बाल विवाह अगर उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला होता तो शायद वो आज यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ होता. सो वी शुड think about the society because we live in the society. Or if we not think about the society, the future generation will ask a question to us that what will we give them? A world where all are doing so-called belly dance. A world where no one is thinking about the society. A world where no one is thinking about the persons. A world where is no mercy. A world where is no mercy for people. You can't give them an answer because you only give them some type of so-called belly dance. Okay. Someone said right, if you give me some good mothers, I will give you a better nation to live. If you give me some good mothers, I will give you a better nation to live. चाहे कोई भी हो, कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, उसके पीछे शायद उसकी माँ का हाथ होता है जो उसे सिखाती है what is right, what is wrong. And if you can justify this thing that it is right, then I challenge you that you will teach your next generation that it is right. हम उन्हें निकम्मा बना रहे हैं. कर क्या रहे हैं भाई? इसे मेहनत नहीं कहते जो हम उन्हें सिखा रहे हैं. हम उन्हें हेरिडिटी के नाम पे क्या देंगे? हमारे पेरेंट्स ने हमें हेरिडिटी के नाम पे क्या दिया? गीता, रामायण, महाभारत, वेद, जो हमें सिखाए, कहानियाँ जो हमें उन्होंने बताई व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. एंड व्हाट विल वी गिव देम? टिकटॉक. हम उन्हें सिखाएंगे कि ये करो बेटा, इट विल इम्प्रूव योर फ्यूचर एंड इट विल आल्सो इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ योर होल नेशन. इट विल गिव द फूड टू हंग्री. इट विल गिव द हाउस टू शेल्टर्स. और इन्हीं से गरीबों का कल्याण होगा. हमारी सोसाइटी में जितनी भी गरीबी है इसे यूज़ करने से चली जाएगी. क्या हम उन्हें यही सिखाने वाले हैं? पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल.